Good evening, everyone. A very warm and a beautiful good evening to each and every person who is here on the platform of GSTS. Myself, Shivangi Rajput. I have done my graduation in BTech from Electronics and Communication. After then, I have started collaborating with lots of NGOs and I've started teaching in NGOs and schools. After then, I pursued in Masters in Political Science and International Relations. Now I am a research scholar in the University of Delhi. That's all about my introduction. So first thing I would like to mention that how would I like how would I would like to mention that how would I stumble on the topic of today which I'm going to present. So being a science student, I've always knew that I wanted to go for a practical knowledge only. So I've always knew. So let's go for practical rather than restricted myself into the bookish knowledge. So in the process of doing so, I was collaborating with different NGOs and different schools. So there was one NGO named called Goonj, and I think every one of us here know about the Goonj. So in Goonj, there was a mission called the Revival of Indian Indigenous Tribal Textiles. So I went from cities to cities and villages to villages and see how beautiful these tribal textiles are, how unique, how environment friendly, what are the different patterns, what are the different symbols which are used in these tribal textiles. Since then, this topic has struck my heart and soul. So I've decided that I should give my presentation on this topic only. So welcome here, everyone. So So the topic is called The Threads of Heritage, Celebrating the Wisdom of Tribal Women and Elders in India's Textile Tradition. So सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ट्राइब्स के बारे में एक जनरल नॉलेज. So according to Census of India, there are around 705 officially recognized scheduled tribes, and these are I'm talking about सिर्फ जो officially recognized है. जो स्टेट है जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन है ट्राइबल पॉपुलेशन की, that is मध्य Pradesh, and the union territory is Lakshadweep, and these all make up around 8.6% of the total population of our India's total population. So starting with the topic, हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ट्राइबल टेक्सटाइल होता क्या है. So अगर मैं बात करूं टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल एक जस्ट पीस ऑफ क्लोथ है, जस्ट अ वेरी सिंपल पीस ऑफ क्लोथ. बट अगर मैं उसके आगे ट्राइबल जोड़ देती हूँ, द होल game changes here. So what are tribal textile? It is a piece of cloth that is handcrafted by our indigenous and tribal communities, and which are not just only piece of cloth. ये जो पीस ऑफ क्लोथ है, इसमें हिस्ट्री रिफ्लेक्टेड है, इसमें कल्चर रिफ्लेक्टेड है, इसमें उनका वे ऑफ लाइफ रिफ्लेक्टेड है, इसमें उनके आसपास की सराउंडिंग्स रिफ्लेक्टेड है. सो इट इज नॉट जस्ट अ सिंपल फैब्रिक. सो दीज आर कॉल्ड ट्राइबल टेक्सटाइल, एंड ये बहुत डीपली रूटेड है उनका रहने सहने का तरीका, उनका कल्चर, उनका एनवायरमेंट. सो दिस इज कॉल्ड ट्राइबल टेक्सटाइल. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है. ट्राइबल टेक्सटाइल जान लिया, बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कल्चरल सिग्निफिकेंस. दे आर आर हेरिटेज प्रिजर्वेशन. जो इतने टाइम से हमारे जो ओल्ड ट्रेडिशन और ट्राइबल हिस्ट्री चले आ रहे हैं, ये उनको प्रिजर्व करता है. ये रिचुअल्स और सेरेमनीज में गिफ्ट किया जाता है. कोई स्पेशल फैब्रिक जो सिर्फ वेडिंग के टाइम पे गिफ्ट होता है, कोई स्पेशल फैब्रिक जो सिर्फ फेस्टिवल के टाइम में गिफ्ट करता है. तो दीज आर अ ह्यूज preserving history cloth. नेक्स्ट, द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. इनकी वजह से बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज है जिनका लाइवलीहुड सस्टेन कर रहा है. इनसे जेंडर बैरियर्स तोड़ के हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं. दीज आर हैव सम मार्केट वैल्यू जो कि इंटरनेशनली भी हम एक्सपोर्ट करते हैं. नाउ कम्स द सोशल सिग्निफिकेंस. जब
हम जब ये ट्राइबल लोग एम्ब्रॉयडरी करते हैं साथ में बैठ के, या फिर वीविंग प्रोसेस होता है, वो एक कलेक्टिव प्रोसेस होता है, तो इट लीड्स टू कम्युनिटी बॉन्डिंग। अगेन नॉलेज ट्रांसफर होता है, elders to children, from son to daughter, from grandfather to grandson, just like this knowledge transfer होता है। Again, ये environmentally very significant है। A lot of, mostly in fact, जो tribal textile है, they are 100% environment sustainable. Next, the artistic and aesthetic value, obviously. So, tribal textiles में मैं regionally I will classify some of the major textiles. जैसे नॉर्दर्न इंडिया में I will be discussing पश्मीना वूल, वेस्टर्न रीजन में रोगनाथ, इन ईस्टर्न रीजन I would be discussing संबलपुरी इकत, सेंट्रल रीजन चंदेरी वीव, नॉर्थ ईस्टर्न में एरी सिल्क एंड सदर्न रीजन में कावंडी वूल। So first I would like to start my classification with the northern region, and जिसमें हम डिस्कस करें पश्मीना वूल के बारे में। So पश्मीना is called the jewel of Himalayas, and which is so rightly said. So पश्मीना जो वर्ड है वो आता है एक पर्शियन वर्ड से जिसका नाम है सॉफ्ट वूल, और वो जो पर्शियन वर्ड है उसका नाम है पश्मी। तो पश्मीना का हिस्ट्री अराउंड 600-700 साल पुराना है, और इनफैक्ट अकबर के टाइम में, जो मुगल कोर्ट में अकबर थे, उनके टाइम में पश्मीना को एक सिंबल ऑफ रॉयल्टी भी दिया गया था। सो एक बहुत फेमस फोकलोर है पश्मीना के अराउंड कि इन द कोल्ड माउंटेन्स ऑफ हिमालयास एक बहुत स्पेशल गोट होती है जिसका नाम है जुलूम, और इस जुलूम को लोग मैजिकल क्रिएचर के नाम से जानते हैं। सो क्या होता है कि एक बहुत टाइम पहले एक पुअर शेफर्ड होता है जिसका नाम होता है तेंजिंग। सो तेंजिंग जो है बहुत सर्दी में अपने आप को बहुत मतलब कठिनाई महसूस करा था अपने आप को वार्म रखने के लिए और अपनी गोट्स को रखने के लिए। तो वो देखता है एक दिन खिड़की से बाहर कि देयर इज दिस ब्यूटीफुल गोट आउटसाइड हिज विंडो विच इज ग्लोइंग वाइट एंड हैज द गोल्डन आइज। सो वो उसका पीछा करता है, एंड वो जो गोट होती है वो उसको एक केव में ले जाती है। सो वहां पे जब वो जाता है तो वहां पे से स्मॉल 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 वुलन टफ्स मिलते हैं। अगले दिन वो वुलन टफ्स घर लेकर आता है और एक शॉल बनाता है। तो वो जो शॉल जब वो बेचने जाता है तो उसे बहुत जेनरसली जो है आर्टिस्ट और जो ट्रेडर्स होते हैं वहां के वो पे बैक करते हैं, एंड उसके बाद से पश्मीना का स्टोरी स्टार्ट हुआ। सो पश्मीना को बोला जाता है कि ये जो जुलूम है, जो जुलूम क्रिएचर जिसकी हमने बात करी है, उसकी स्पिरिट जो है वो उसको कंटेन करता है। सो द वीविंग प्रोसेस कि पश्मीना बनता कैसे है, तो सबसे पश्मीना का एक और खासियत है, पश्मीना जो है वो एक किससे एसोसिएटेड है, इट इज एसोसिएटेड विद द छंगपा ट्राइब, एंड जो कि सेमी नोमेडिक ट्राइब्स है, जो कि एक स्पेशल गोट को रेस करती है जिसको बोलते हैं छांग थांगा गोट, और जिसको हम पश्मीना गोट भी बोलते हैं। तो क्या होता है कि पश्मीना गोट बहुत सर्दी में एज लो एज -40°C में इट डेवलप्स द स्पेशल काइंड ऑफ अंडरकोट, जो कि स्प्रिंग सीजन में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो उसको शेड करता है। तो ये जो शेडेड जो वूल होती है, इससे पूरा वीविंग प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है। सो पहले होता है क्लीनिंग एंड सॉर्टिंग, मतलब उसको प्रॉपर पानी से साफ किया जाता है एंड सॉर्ट किया जाता है। देन स्पिनिंग होता है। स्पिनिंग बहुत ही डेलिकेट काम है बिकॉज जो पश्मीना का जो वूल है वो बहुत ज्यादा थिन एंड प्रोन टू ब्रेकेज है, सो बहुत ध्यान से। देन वीविंग में अराउंड लगने को 7 दिन से लेकर 6 महीने तक का टाइम लगता है। इट डिपेंड्स कि कितना इंट्रिकेट वीविंग हो रहा है उससे। एंड देन कम्स द एम्ब्रॉयडरी पार्ट। आई शो यू सम ऑफ द डिजाइंस। दिस इज कॉल्ड फ्लोरल पैटर्न विच इज कॉल्ड अ गुले बुलबुल। व्हाई? बिकॉज गुल मीन्स फ्लावर एंड बुलबुल मीन्स नाइटिंगेल। So this pattern is called Gule Bulbul. This is called Paisley, Butta or Keri. This is influenced by Persian influence. This is called Chinarli, which is an iconic symbol of Kashmir. This is called Jal, mesh or net-like design. It is like a Jal kind of pattern on the fabric. These two techniques are very important because why? Sozni embroidery and paper mache embroidery, these are the hallmark of Pashmina wool. So this Sozni embroidery is done on the borders of Pashmina textile, and this paper mache embroidery, this is the hand printing embroidery, which it is done by hand only.
This is called kalamkari, again hand printed, and kani weaving. When it comes to kani weaving, it is a very intricate work, and the artisan use this small wooden stick which is called as kani, and उस kani के चारों ओर thread लिपटा होता है और उससे kani weaving होता है. सो कल्चरल सिंबॉलिक अलग अलग कलर का अलग अलग मतलब है. लाइक रेड और मरून इज सिंबल ऑफ लव एंड प्रोस्पेरिटी. ग्रीन जो है वो एवरीडे वेयर में यूज करते हैं, एंड इट ऑल्सो सिंबलाइजेस नेचर, हार्मनी एंड फर्टिलिटी. व्हाइट इज यूज फॉर पीस एंड स्पिरिचुअलिटी. So next comes the western region, and in western region we'll be discussing about the Rogan art. So रोगन आर्ट को बोला जाता है द एंशिएंट क्राफ्ट ऑफ पेंटेड थ्रेड्स. वो आप जानेंगे ऐसा क्यों. तो रोगन जो वर्ड है वो एक पर्शियन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है ऑयल, और ये खत्री कम्युनिटी है कच्छ रीजन में, वो ही प्रैक्टिस करती है. तो व्हाट हैपेंड कि ये एक ऐसी प्रथा थी कि ये सिर्फ मेल डोमिनेटेड थी, कि सिर्फ मेल ही इस प्रथा को जान सकते थे और आगे पास डाउन कर सकते थे. तो उसकी वजह से अराउंड 20th सेंचुरी में ये जो आर्ट फॉर्म था ये वैनिश्ड हो गया था. सो ये रिवाइव हुआ 2014 में, जब पीएम मोदी ने ये पेंटिंग, दिस ट्री ऑफ आर्ट पेंटिंग जो है, ये जब बराक ओबामा को गिफ्ट करी थी व्हाइट हाउस ने. So after this, there is this unique process of Rogan art. How it is like the difference. There is a huge difference between different tribal textile, and how is the process of like whole from weaving to embroidery. So इसमें क्या होता है कि कैस्टर ऑयल को 12 घंटे जो है वो जलाया जाता है जब तक वो स्टिकी और जेल लाइक सब्सटेंस नहीं बन जाता, और उसके बाद उसमें नेचुरल कलर्स ऐड किए जाते हैं, एंड दिस इज हाउ इट इज डन. सो इसमें कोई ब्रश यूज नहीं होता, और ना ही जो आर्टिस्ट होता है वो डायरेक्ट कपड़े को टच करता है. व्हाट हैपेंस, दे यूज दिस थिन मेटल रॉड, एंड इसमें पेंट स्टिक करके वो हवा में इसको लहराते हैं अकॉर्डिंग टू द हैंड मूवमेंट्स, एंड वो हैंड मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग ही जो कपड़ा होता है उस पर वो डिजाइन बनता है. सो एक बहुत फैसिनेटिंग चीज है कि हर रोगन आर्ट जो है वो अलग होती है. नो टू रोगन आर्ट्स आर सेम, और इसमें कोई स्टेंचिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, सब कुछ फ्रेश एंड न्यू एंड यूनिक है. नेक्स्ट कम्स द फोल्डिंग टेक्निक. वंस एक बारी जब एक साइड पर पैटर्न डेवलप हो जाता है, उसको फोल्ड किया जाता है कि मिरर व्यू आ जाए दूसरी साइड पर, एंड उसके बाद ताकि सिमेट्रिकल लगे, एंड उसके बाद ये करने के बाद फिर बाद में डिटेलिंग एंड फिनिशिंग होती है. नेक्स्ट कम्स की डिजाइन एंड पैटर्न्स. ट्रीज और लाइफ करता है कि प्रॉस्पेरिटी हो, ग्रोथ हो. पिकॉक, बर्ड्स, एलिफेंट्स, दीज आर नेचर इंस्पायर्ड मोटिव्स, एंड इनका मतलब है ग्रेस, स्ट्रेंथ एंड हार्मनी. अगेन कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, तो देयर आर सम ट्राइब्स, बोडो ट्राइब, अही ट्राइब, मेघवाल ट्राइब, जो एक्सक्लूसिवली जो रोगन आर्ट है वो वेडिंग्स पे अपना और फेस्टिवल्स पे चेंज करते हैं, एक्सचेंज एक्चुअली. एंड a special thanks to the women of Nirona village for reviving this whole art form. Next comes the eastern region, संबलपुरी इकत. So संबलपुरी एक कपड़े को बोला जाता है, एंड इकत उसकी टेक्निक को बोला जाता है, दोनों मिलाकर होता है संबलपुरी इकत. So संबलपुरी इकत की खास बात यह है कि इसका जो हिस्ट्री है वो 1000 साल से भी पुराना है, और इसको इस कपड़े को जो जगन्नाथ जी थे उनको चढ़ाया जाता है. इनफैक्ट आज भी चढ़ाया जाता है, और ये एक नेशनल रिकॉग्निशन स्वदेशी मूवमेंट में उस तरीके से भी यूज हुआ एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म. सो नाउ कम्स कि हाउ इट इज लाइक प्रिपेयर्ड. सो फर्स्ट यार्न प्रिपरेशन. यार्न प्रिपरेशन में या तो फाइन कॉटन होती है या सिल्क यार्न होता है, जिसको उसकी स्ट्रेंथ की वजह से मतलब पहचाना जाता है कि हाँ हमें ये यूज करना है. दे सेलेक्टेड अकॉर्डिंगली कि सिल्क यूज करना है या कॉटन यूज करना है, और उस यार्न के बाद उसको धो के उसमें से अच्छे से इम्प्योरिटीज निकाली जाती है, उसको स्ट्रेच किया जाता है और उसको अच्छे से वून किया जाता है. देन कम्स द ड्राइंग प्रोसेस. इकत जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है. इसमें क्या होता है कि कपड़े को एक तरीके से बंद टेक्निक में बांध दिया जाता है, और उसके बाद इसको बांधने के बाद इस पे डाई किया जाता है और फिर ड्राई किया जाता है, एंड दिस प्रोसेस कीप्स ऑन रिपीटिंग ऑफ टाइंग एंड डाइंग एंड ड्राइंग. सो बंद टेक्निक को ही हम बोलते हैं टाई डाई रेजिस्ट टेक्निक. नेक्स्ट कम्स द वीविंग पार्ट. सो जो डाइड यार्न होता है उसको वीव करता है हैंडलूम के द्वारा.
नेक्स्ट की डाइंग प्रोसेस 3 टाइप का होता है. फर्स्ट सिंगल इकत, डबल इकत एंड द कर्वी लीनियर इकत. तो जो ये कर्वी लीनियर इकत है, दिस इज लाइक स्पेशल फॉर उड़ीसा, दिस इज एंडेमिक टू उड़ीसा. नेक्स्ट, these are different patterns. This is religious and cultural symbols जिसमें हम शंख यूज करते हैं, deities या temples का वो यूज करते हैं. नेचर में we use peacocks, we use flowers. Here comes a geometric pattern जिसमें हम diamonds को बनाते हैं, या फिर in fact this jal mesh like design is also a form of geometric pattern. Next come color palette. Again, different colors का like different meaning है. So red signifies power, strength. Yellow is associated with prosperity and celebrations, and so like others. कल्चरल सिग्निफिकेंस. सो जो संबलपुरी इकत है उसको सिर्फ एक वीविंग के तौर पे नहीं देखा जाता, ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है. जैसे हमने सुना था कि जगन्नाथ जी को भी चढ़ाया जाता है, तो ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो कि एक पूरा स्टोरी और एक पूरा बिलीफ सिस्टम को जो है वो शो कर रहा है. नेक्स्ट कम्स द चंदेरी वीव विच इज कॉल्ड द फैब्रिक ऑफ रॉड. सो चंदेरी का जो हम ओरिजिन देखते हैं वो देखते हैं अराउंड 2nd and 7th सेंचुरी से. बट अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो चंदेरी जो है उसके टाइज मिलते हैं महाभारत के टाइम से भी, और यूजुअली ये रॉयल फैमिलीज वेयर करते हैं, जिसको टाइटल भी मिला था द वोवन एयर ऑफ मध्य प्रदेश. सो इससे एक जुड़ी हुई बहुत इंटरेस्टिंग फोकलोर है कि एक रानी मृगनयनी थी, राजा मानसिंह तोमर की वाइफ. सो वो चंदेरी के टाउन में जाती है एंड वो देखती है कि एक टाइप का फैब्रिक है जो बहुत ही फाइन और लाइट है. शी वियर्स दैट फैब्रिक एंड दैट फैब्रिक शिमर्स लाइक गोल्ड, एंड उनको उस फैब्रिक से प्यार हो गया. तो जब उन्होंने वो साड़ी बांधी तो उन्होंने डिक्लेयर करा कि ये जो साड़ी है, दिस फैब्रिक इज मेड फॉर क्वींस ओनली. तो वो चंदेरी गांव से अपने पैलेस में बहुत सारे वीवर्स ले आती है और उनको बोलते हैं कि मेरे लिए बहुत सारी चंदेरी की साड़ी बनाओ. तो तब से अब तक इसको फेवरेट फैब्रिक बोला जाता है रॉयल वुमेन का. और आज भी चंदेरी जो भी पहनता है तो वो दे कैरी द लेगेसी ऑफ दैट क्वींस लव फॉर द फैब्रिक. सो हेयर नाउ आई विल डिस्कस कि उसका वीविंग प्रोसेस क्या है. तो यार्न प्रोसेस, the yarn preparation, design, marking, weaving and finishing. So जो yarn preparation है उसमें again selection of yarn होता है कि हमको silk चाहिए या cotton चाहिए या दोनों का blend चाहिए. After then the dyeing of yarn. डाई में क्या होता है कि वाइब्रेंट कलर्स जो है ऐड किए जाते हैं एंड उसके बाद उसको वो एक शाइनी शिमर टाइप बनाया जाता है. उसके बाद देन कम्स द वीविंग एंड फिनिशिंग. सो जो थ्रेड्स है, आई शो यू द वीविंग प्रोसेस. तो वीविंग जो है वो 2 तरीके से होती है. तो क्या होता है कि जो थ्रेड है इसको यू आर लुकिंग एट दीज थ्रेड्स, ये थ्रेड को स्ट्रेच किया जाता है एक वाव बीम पे टू प्रिपेयर फॉर द वीविंग. तो इसमें क्या होता है कि ये जो वीविंग है ये आज भी ट्रेडिशनल वीविंग टेक्निक मानी जाती है जो कि हैंडलूम पे करी जाती है. सो ये एक्स्ट्रा वेफ्ट जो थ्रेड है इससे डिजाइन और एम्ब्रॉयडरी दी जाती है एंड दिस इज कॉल्ड द फाइन काउंट यार्न. क्या होता है कि इस थ्रेड का यूज करके ऐसी एम्ब्रॉयडरी क्रिएट करी जाती है जिससे थोड़ा अपलिफ्टेड वर्जन जो है फील हो. इफ यू विल टच दैट फैब्रिक यू विल फील द अपलिफ्टेड डिजाइन. Next comes the design and patterns. Again, the floral and nature-inspired design in which we uses flowers and creepers. These are the geometric patterns. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये 2 है, ट्रेडिशनल एंड कल्चरल मोटिव्स, जिसमें हम पीकॉक देखते हैं या फिर डीटीज देखते हैं या बूटा या कॉइन्स ये सब देखते हैं. एंड दिस आर द ऑर्नामेंटल डिजाइन विच वी यूजुअली फाइंड इन आवर होम्स. तो इसमें जो ये जरी का काम होता है ये बॉर्डर पर होता है. सो ये इसकी खासियत है. नेक्स्ट कम्स द कलर पैलेट. वैसे ट्रेडिशनली जो है ये पेस्टल शेड्स में आती है, बट अब ड्यू टू कंटेम्पररी डिमांड्स अब ये ब्राइट कलर्स भी इसमें ऐड करे जाते हैं. कल्चरल सिग्निफिकेंस इसका ये है कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन से इसका जो है बहुत स्पेशल कनेक्शन रहा है और उनकी लोकल जो कल्चर है वो ये उसको शो करता है. नेक्स्ट कम्स द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. सो एरी सिल्क द फैब्रिक ऑफ पीस. सो
Why we call it the fabric of peace? Because ये जो ये जो प्रोसेस है पूरा, इसमें किसी भी जो कोकून होता है जिससे सिल्क एक्चुअली, हम सिल्क वॉर्म जिससे हम सिल्क जो है लेते हैं, वो कोई हार्म नहीं होता. फर्स्ट ऑफ ऑल, एरी जो है असमीज वर्ड है जिसका नाम है कैस्टर प्लांट. अगेन ये बहुत सारे सेरेमनीज, रिलीजियस जो इवेंट्स होते हैं उसमें यूज होता है. सो इस तरीके से सिल्क वॉर्म को रेयर किया जाता है, एंड उसके बाद वो नेचुरली जो है अपना जब मौत छोड़ता है उसको कलेक्ट किया जाता है, एंड आफ्टर देन उसमें अलग अलग कलर्स, जैसे कि जो टर्मरिक है वो यूज होता है येलो कलर के लिए, या इंडिको है वो होता है ब्लू कलर के लिए. इस तरीके से उस कलर का यूज किया जाता है, एंड फिर लास्ट में वीविंग होती है. सो जो इसका वीविंग प्रोसेस है वो कॉटन और वूल जैसा ही है, सिमिलर. Next comes, there are different sort of patterns: geometric, floral, animal, and tribal. सो कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है कि हम जो एरी सिल्क है उसको सिंबल ऑफ वार्मथ एंड रेजिलियंस भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पुअर मैन सिल्क. वाई? बिकॉज एक बहुत नॉर्मल इंसान भी इसको अफोर्ड कर सकता है. इट इज एसोसिएटेड विद असमीज ट्रेडिशंस. सो इसकी खास बात क्या है कि जितने भी मॉन्क्स हैं, जितना भी बुद्धिस्ट ट्रेडिशन कंट्रीज एवन, या जो भी बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को फॉलो करता है, it is the this silk or this fabric is the flag bearer of those. So ये बहुत hugely जो है वो use होता है. Next comes the southern region, Kavandi quilts of Karnataka. So Kavandi quilt को practice कौन करता है? सिद्धीज. और सिद्धीज कौन है? ये एक एफ्रो इंडियन एथनिक कम्युनिटी है जो कि इंडिया और पाकिस्तान में रह रहे हैं, एंड दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ बांटू पीपल फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका, जो कि प्रेजेंट डे है कीनिया, तंजानिया एंड मोजाम्बिक. सो ये अराउंड कॉन्टिनेंट में दे वर ब्रॉट to this continent around 700 to 800 years ago, and now today in the parts of Karnataka they practice this beautiful art called Kavandi. How it is made? So they collect this different patches of different fabrics, and this stitch these fabrics, and this is how it is being done. So this is the Kavandi. So next key, the interesting fact, the Kavandi quilts are displayed in museums such as the Museum of International Folk Art और Victoria Albert Museum में भी इसका जो है एग्जीबिशन लगा था. सो कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है कि ये बहुत पर्सनली कनेक्टेड है सिद्धि वुमेन से, and they are historically, they were used as bedspreads or blankets and floor coverings. So इस आर्ट को दोबारा से रिवाइव किया गया है कावंडी के फॉर्म. Thank you. And next, this is all about the tribal textile arts. Now I'll talk about the demand and market. So what happens, ये जो tribal textile का demand है, ये mostly जो है core regions में है. सो जैसे फॉर एग्जांपल चंदेरी की डिमांड है मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ के आसपास. जैसे संबलपुरी की जो डिमांड है वो उड़ीसा में है या फिर वेस्ट बंगाल के आसपास है. और अभी थोड़े थोड़े जो है डिमांड है वो मेगा सिटीज में बढ़ रही है, जैसे कि बैंगलोर हो गया या फिर दिल्ली हो गया या कोलकाता हो गया, जस्ट लाइक दिस. एंड organizations like Dastkar and Fab India, they promote these textiles in foreign market also, but due to various reasons बहुत ज़्यादा internationally demand नहीं है tribal textiles की, except some like चंदेरी और पश्मीना. They have the good demand over the international markets. Now here comes the why women are so special in these tribal textiles, and what is the woman's role in preserving the tribal textiles. So first is guardians of tradition and cultural identity. So they are the primary carriers of this indigenous knowledge system. How do they do that? They do the oral transmission. They uses this जो hand woven जो symbols हैं ये उनको pass down करती है, उनके through stories बताती है. तो इस तरीके से जो है they are the primary carriers of this whole knowledge system. Next comes the economic empowerment and livelihoods. So by doing these tribal textiles, they are earning for themselves, and not just for themselves, but they are earning for their whole family. So उस तरीके से क्या होता है कि they are actually empowering their whole family. So
इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे हो रहा है, दे इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और दे इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन हैंडलूम इंडस्ट्रीज एज देयर लाइवलीहुड सोर्स. नेक्स्ट कम्स द इनोवेशन एंड मॉडर्न अडेप्टेशन. बिकॉज कोई भी चीज को कंटेम्पररी बनाने के लिए उसमें मॉडर्न एलिमेंट्स जो है वो हमें ऐड करने पड़ते हैं. तो वुमेन आर एक्चुअली preserving tradition by also innovating and by also adopting these indigenous textiles up to the modern day demands. So next comes the breaking gender barriers. So बहुत सारी ऐसी आर्ट फॉर्म है जो मेल डोमिनेटेड रही है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टॉक्ड अबाउट द रोगन आर्ट. सो वो सेव आज क्यों हुई? बिकॉज उसमें वुमेन का जो इंटरवेंशन था वो जरूरी था, वुमेन का इन्वॉल्वमेंट जरूरी था. सो वुमेन जस्ट लाइक दैट, जो ट्रेडिशनली जो मेल डोमिनेटेड आर्ट फॉर्म्स रही है, इनफैक्ट ऑल आर्ट फॉर्म्स, दे आर breaking the gender barriers that women and they are actively participating in these tribal textiles and doing their best. Next comes the women-led textile movements and revival efforts. So there are a lot of women who are actively participating in the textile movements and revival efforts, and they are doing their best. For example, I would like to discuss the case study of Anita N. Reddy. So she is what she is doing, she is actually helping the Siddhi community. She gives them the pieces of cloth and she asks them to do stitches and do stitching for their livelihood. So the work of Anita N. Reddy is recommendable when it comes to the reviving of the Kavandi art form. Next comes the role of elderly population. So mentorship and skill transmission. So unlike formal education, जो elderly population है, they transfer their knowledge through oral transmission and demonstration ki like this happens, this happens, this happens. So they also train the younger people and they have the deep understanding of materials which they use while they mentor and the skill transmission when they do. Next comes the upholding ethical and sustainable practices. All the art forms I have discussed, as in they are 100% environment sustainable, and every art form has some ethics, like the weaving has to be done on the traditional handloom. So these kind of ethical and sustainable practice are still carrying with the elderly population. Next comes the memory keepers of vanishing arts. So there are a lot of art forms in which some elders are the last remains of having the knowledge of that art form. Next comes कम्युनिटी लीडर्स इन क्राफ्ट कोऑपरेटिव्स. सो क्या होता है कि बहुत सारे जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज होती है या बहुत सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं या फिर कोऑपरेटिव्स होते हैं, उसमें जो उस गांव का या फैमिली का हेड बनाया जाता है एज अ लीडर, एंड वो लीडर जो है वो लीडर है वो एल्डरली पॉपुलेशन में वो क्या है वो पास डाउन करते हैं अपनी जो नॉलेज होती है. देन अगेन रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल ट्रेजर्स. बहुत सारे एल्डर्स है जो पद्म विभूषण सम्मानित है. तो ये भी एक तरीका है उस आर्ट फॉर्म को प्रिजर्व करने का, एंड इसी तरीके से दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल ट्रेजर्स. There are some culture preservationists. Empress Noor Jahan has been done a recommendable job in the preservation of Pashmina wool. Again, Anita N. Reddy, Jatin Sharma, Padma Shri Kamala Devi Chattopadhyay, they are the worth mentioning preservationist here. Next, challenges faced by tribal textile. So there are a lot of challenges which are currently faced by tribal textile. So the artisan community, what is happening कि सबको बहुत जल्दी जो है they just want the fast fashion, they just want कि we are giving you money and you just give us that back. So this kind of culture is spreading, and उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आर्टिसन कम्युनिटी को कोई इंसेंटिव या रेन्यूमरेशन ज्यादा नहीं आ रहा है काम करने के लिए. अगेन मार्केट कंपटीशन, बहुत ज्यादा मार्केट कंपटीशन है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज जो मास प्रोडक्शन करते हैं, एंड द मिडल मैन एक्सप्लॉयटेशन. उसमें क्या होता है कि एक मिडल मैन होता है जो ट्राइबल लोगों से तो ज्यादा पैसे ले लेता है और बेच देता है उससे ज्यादा पैसों पे. एंड व्हेन इट कम्स कि जब उनको रेन्यूमरेशन देने की बारी आती है तो वो उनको कम पैसे देकर जो है भेज देता है. तो दिस इज लाइक अ मेन रीजन, वन ऑफ द मेन रीजन
And again, the climate dependency, climate sensitivity, and skill transfer gap. Next come, there are a lot of initiatives taken to promote ट्राइबल टेक्सटाइल्स, जैसे गवर्नमेंट स्कीम एक ट्राइफेड, जो कि इंडिया ऑर्गेनिक करके एक प्लेटफॉर्म भी रन कर रहे हैं जिसपे फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलती है, जीआई टैग रिकॉग्निशन, जिसमें हम लीगल एक रिकॉग्निशन देते हैं कोई भी प्रोडक्ट को जो उस एरिया से एसोसिएटेड होता है. अगेन एनजीओ एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट एंड कॉमर्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म. फॉर एग्जांपल अमेजोन कारीगर. सो अमेजोन पे एक ऐसा सेक्शन भी है जहाँ पे जो हैंडलूम या ट्राइबल जो है वो काम करता है, उनको जाके परचेज कर सकते हैं. बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सपोजर और एग्जीबिशन जैसे सूरजकुंड मेला and again fashion and design collaboration. In fact, the Sabyasachi brand is doing the collaboration, a lot of collaboration with Varanasi, Banarsi silk and the Chanderi fabric. Next, the last part, that as an individual, what can we do? So we can raise some crowdfunding for the artisan. We can help the tribals people to to showcase their exhibition in local communities, school and colleges. What we can do, we can give tribal textiles to each other instead of just gifting anything else. And we can create artisan student collaboration so that it can create innovation and it can create more mediums to spread this art forms. We can create a lot of awareness regarding these process. We can support them to record their stories, and we can help them to that record the story to spread to the different social media platforms. We can support encourage dying sustainable practice, and we can also incorporate tribal textiles in our home decor, like curtains, like bed sheets, like sofa covers and everything. Thank you. That's all about my topic. Thank you so much. Thank you so much, Shivangi. It was a great presentation, and congratulations to you for this beautiful talk. अभी चैट बॉक्स में हमारे पास कुछ क्वेरीज आई है आपके टॉपिक्स के रिगार्डिंग, तो हम उनको लेंगे और आप कोशिश कीजिए उनको आंसर करने की. So the first question is, how do natural dyes sourced from local materials contribute to the uniqueness and sustainability of tribal textiles? So what happens that they use this natural things, like for example, if they want pink or some red color, they will source it from hibiscus flower. If they want if they want yellow color, they will source it from turmeric. For blue, they use indigo. So for green color, they will use the leaves or trees leaves, actually plants and trees leaves. So these are the kind of practices which they follow, and how like natural dyes actually develops. Okay, Shivangi, and there is one more question from Adarsh. What challenges do tribal textile artisans face in the contemporary market, and how are they adapting to do it? So yes, I have discussed it. After this industrial revolution, there is this huge race behind the mass production things. Like everyone is going to H&M, everyone is wearing the same thing. So these kind of things, so what they are mass producing, and they are cheaper also when it comes to tribal textiles. So tribal, what happens in tribal textile कि वो already थोड़ा महंगा, मतलब because बहुत टाइम लगता है बनने में. It is a process of a patience and care. So usually it is bit costly. Also, it takes a lot of time. So these are two of the main challenges which tribal textile facing when it comes to the modern contemporary fashion techniques. Okay, Shivangi. और एक last question हम लेंगे. The question is from Megha. How government sector help to promote these tribal textiles and to encourage the artisans involved in this section, most specifically women? So yes, so for example, government has launched this TriFed program. So in what TriFed does, it provides the market access to tribal handmade things, tribal textile, tribal toys, like these things. So they provide the market, and they provide source of platform for them
and Ministry of Textiles is also working with a lot of tribal people, and they're also helping them to go digital. For example, Go India and for example, Tribal India. These are some of the platforms which they are actually helping tribal people to, go digital and go spread your information or awareness related to your products. And NGO and private sector is also helping the government in this part. So they are, for example, there is this GoCook. This is one of the platform. So it is one of the private platform, and they're also, what they do, cooperatives को, they artisans को, और जो ट्राइबल पीपल है, ये उनको तीनों को कनेक्ट करता है, और तीनों को कनेक्ट करने के बाद उनको एक तरीके का कनेक्शन बिल्डअप करके उनको पास लाता है कि सो डायरेक्ट डीलिंग हो पाए और मिडिल मैन का एक्सप्लॉयटेशन ना है. सो दिस इज हाउ इट इज गो. ओके शिवांगी, चैट बॉक्स से और एक क्वेश्चन हम लेंगे जो कि हिमांशी मिश्रा पूछ रही है. इज देयर एनी इनिशिएटिव which the government can take to remove this middle layer which can benefit the tribals? Yes, government has already doing it. So though middlemen आज से नहीं, बहुत टाइम से और exploitation हो रहा है, तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे पूरा ट्राई कर रही है. अगेन आई हैव डिस्कस की इंडियाज दिस ट्राइफिड प्रोग्राम एंड इवन दिस इंडियाज हैंडलूम इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन scheme of the government and PM Vishwakarma Yojana. These are the type of the programs which government are trying to remove this middleman from the whole system. So and government is also developing platforms, digital platforms, कि उससे भी जो है, जो बीच के जो middleman है वो हट जाए. ओके शिवांगी, आपने बहुत ही खूबसूरती से सारे सवालों के जवाब दिए. एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि हम अपने हर एक स्पीकर से पूछते हैं. आपका GSTS के साथ अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरी ओर से GSTS की टीम को, especially Manish sir, I am very thankful to you and the type of guidance you have provided me, and it is like my first presentation, so I was bit nervous also, but I tried to keep calm and everything. But I think the way I am presenting or the presentation is not possible without GSTS help. They helped me actually a lot from the starting to the end and from each and every single query of mine. So thank you so much to the entire GSTS team. Thank you. थैंक यू सो मच शिवांगी. हम भी बहुत खुश है कि आप हमारे साथ जुड़ी. इसी के साथ अभी आगे बढ़ते हुए हम अपनी जो आज के गेस्ट है डॉक्टर अर्चना मैम, उनको बुलाते हैं, उनसे जानते हैं कि उनको आपका जो प्रेजेंटेशन है, जो टॉक है, वो कैसा लगा. सो डॉक्टर थैंक यू शिवांगी, आपका प्रेजेंटेशन रियली भी बहुत अच्छा था. बट मैं एक चीज आपको, मतलब बहुत अच्छा था, मैं इसमें कमियां नहीं निकाल रही हूँ, बस ऐड करने के लिए बोल रही हूँ कि आप थोड़ा वुमेन पे फोकस थोड़ा सा और बढ़ाइएगा इसको, ठीक है. और एक जैसे कि मैक्सिमम आप नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल वुमेन को देखेंगे तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है. आपने शायद देखा होगा, पढ़ा होगा. इनका जैसे कि लंबानी एक एम्ब्रॉयडरी है, इसमें मेन वुमेन का रोल रहता है ना. वहां पे मेल का कोई रोल नहीं है. आपने आई थिंक देखा होगा, पढ़ा होगा. ऐसे ही वहां पे एक चकमा कम्युनिटी है नॉर्थ ईस्ट में, सुना है आपने? तो वहां पे इन लोगों का एक कल्चर है कि जो नई मतलब न्यूली मैरिड गर्ल होती हैं वो कपड़े बुनती हैं और डिजाइन करती हैं. उसमें कोई मेल का रोल नहीं रहता है. और सपोज दैट उनका 1 वीक से वो बुन रही है, फिर छोड़ दिया, तो उसको दूसरा कोई नहीं वो करेगा, वो कंटिन्यू करेगी तो वही गर्ल करेगी. और न्यूली जो उनका मतलब कल्चर है, तो इस चीज पे भी थोड़ा सा मतलब नॉर्थ ईस्ट पे थोड़ा फोकस कीजिएगा. आई थिंक ये मेरा सजेशन है. ओके, इट वाज अ ग्रेट प्रेजेंटेशन. Ma'am, I will consider your remarks. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you for your precious remarks and valuable time. इसी के साथ आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि GSTS जो है वो
हर मंथ अपने जो स्पीकर ऑफ द मंथ है उनको अनाउंस करता है, उनके नाम अनाउंस करता है कि जो हर मंथ में जो अच्छे बोलने वाले स्पीकर होते हैं उनके नाम का हम चयन करते हैं। तो उसी को अनाउंस करने के लिए मैं अपने साथी शैलेंद्र को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा कि वो आए और जो हमारे जनवरी और फरवरी इस 2 महीने के जो स्पीकर ऑफ द मंथ है उनके नाम अनाउंस करें। Sure. Thank you so much, Mr. Manthan, for inviting me for announcing the speakers of the month January and February. To start with, congratulations, Miss Shivangi, for such a wonderful depiction of yours today. And to announce the speaker of the month for the month January, we had 4 speakers in the month of January. The first is Mr. Pranjal, Miss Shrishti, Miss Ratna, and Mr. Vinay. मिस्टर प्रांजल ने बांग्लादेशी क्राइसिस पर अपनी टॉक दी थी, मिस सृष्टि ने कुंभ पर अपनी टॉक दी थी, मिस रत्ना ने मेंटल हेल्थ पर अपनी टॉक दी थी और मिस्टर विनय ने इकोनॉमिक सोसाइटी पर बोला था। एंड द स्पीकर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी इज मिस सृष्टि, जिन्होंने कुंभ पर अपनी टॉक दी थी। So congratulations, Ms. Shrishti. And if you are here and if you want to share some of your thoughts with us, so you are welcome. मिस सृष्टि, अगर आप यहाँ पर हैं और अगर आप कुछ भी अपने विचार, अपने आइडियाज हमारे साथ आज साझा करना चाहती हैं तो काइंडली गो अहेड। Good evening to everyone. I want to say thank you so much GSTS कि मुझे आपने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे कि मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस गेन हुआ है कि कैसे बोलते हैं, कैसे किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, कैसे एक रिसर्च करते हैं। इसके लिए मैं पूरी GSTS की टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Ms. Shrishti, and best wishes for your future as well. Now, for the month of February, we had 4 speakers. So the first was Miss Saloni, जिन्होंने Chinese century पर अपनी talk दी थी. Second was Mr. Himanshu, जिन्होंने Africa Turkey relations पर I think अपनी talk दी थी. And third was Miss Gursi Maran, जिन्होंने modern technology पर अपनी talk दी थी. And fourth was Miss Rajshri, जिन्होंने ताजमहल और उसके तमाम जो डिस्कशंस हैं उस बिल्डिंग के रिगार्डिंग उस पर अपनी टॉक दी थी। सो द स्पीकर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी इज मिस राजश्री, एंड इफ she is here and she wants to share some of her thoughts, so you are welcome, Rajshri. Good evening, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. I'm so much overwhelmed after hearing this. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि ये मेरा पहला डॉग था और एक पीछे मन में चल रहा था कि शायद मेरा नाम आ जाए, शायद मेरा नाम आ जाए। एंड आई एम सो ग्रेटफुल, सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Okay, thank you so much, Rajshri, and congratulations once again to both of you. Now, once again, to proceed the session further, I would like to hand over the moderation to Mr. Manthan. Thank you, Shailendra, and congratulations to Srishti and Rajshri. और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट संडे के लिए हमारे जो स्पीकर है उनको मैं इनवाइट करना चाहूँगा। उनका नाम है आरुक्षिता एंड द नेम ऑफ अ टॉपिक इज एक्सप्लोरिंग द डेप्थ्स ट्रेसिंग द प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंटल DNA. So I request Arukshita to come and introduce her topic. Good evening, everyone. I hope I'm visible as well as audible. Yes, Arukshita, you are. First of all, my regards to the team of Graduate Scholars Talk series for conducting a successful 212th talk. With this, I would like to introduce my topic. So, the ocean is sending strange messages. Unusual events in the ocean have been surfacing on social media. What's so mysterious about the deep sea? I am Arukshita Tyagi, final year's master student pursuing fish biology as my specialization at Department of Zoology, University of Delhi. In the next talk of GSTS, we will dive right in the pool of some whys and hows, while engaging in a mind-boggling discussion with me titled as Exploring the Depths, Tracing the Presence by Environmental DNA.
The preliminary discussion will begin by looking at the mysteries of deep sea, followed by developing an understanding of the underwater world, revolving around the following subheads: what all lies beneath, how far have humans gone, and what are some recent findings. Moving ahead towards the core of the talk, I would be talking about how biologists, historians, and archaeologists have made groundbreaking progress, making an attempt to unravel the mysteries we discussed in the beginning of the talk by using environmental DNA. I will be discussing the basic concepts of environmental DNA, followed by a discussion on the subheads: how environmental DNA has been used to monitor biodiversity and spot the presence of invasive species. This will be a perspective for biologists. Second is how ancient DNA has led to the discovery of secrets buried in the sand. This will be a perspective for historians as well as archaeologists. Third is how deep sea exploration contributes in achieving global sustainability goals. We'll be discussing India's deep ocean mission. Concluding the talk, I will put forth my perspective of integrated research for covering the research gaps in exploring the depths of underwater world. Thank you so much, and thank you, team of GSTS.